Reuters, my dear Reuters. Reuters. What can you write? What can you write? Ask yourself this question. What can you write? How can you write? Why to write? So please write these questions on writing. Why to write? What to write? How to write? What can I write? Can you write these questions? If you don't write, so it means that you have some issue of thoughts, fear, phobia. You consider it unnecessary. Why to write? Just listen to Naeem Khan. Listening is enough. So in this workshop, we will be discussing technically writing, and after this workshop, you people must be commencing your journey of great writing. If I am audible and visible, so please like this video broadcast and write the comment. Why to write? How to write? What to write? What can I write? What am I writing? Please share the link in 3 WhatsApp groups and save to. Let me know that you did share. The first question is why to write? Why to write? Please answer these questions. Write. This is workshop. Workshop means that you also write and I also speak and you write it. So why to write? Why do we write? What is the answer to this question? If I am audible and visible, so please like this video broadcast and share the link in 3 WhatsApp groups and save to, please. Now, why to write? Why do we write? Can you answer this question, please? Make a comment. Why you do not make comment? Do you consider it unnecessary? Or you do not have competence for communication because you may not feel the competition? Triple C. Competence, communication, and competition. So why do you write? For exam, for catharsis, because writing is unburdening of emotions. हम क्यों लिखते हैं? Fida Hussain Abbasi, please write I, not we. I, you, particular your case. Wisdom is I. When you start using the pronoun I, you are wise. I write in order to deliver our message or ideas to reader. Message, ideas. So 2 reasons that he wrote, that is message and idea. Because writing is the way to express ideas academically. Madiha. I have to write Reza.
because it is best way to express my ideas and thoughts. This best way to practice and enhance productive skills. Excellent. We write, not we, I. I write. Why you write? Self-recognition. Recognize yourself in the herd. ये जो हर्ड है HERD हर्ड, भीड़ चाल मत चले. अपना तशख़्ख़ुस, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी मेक इट बाय यूजिंग प्रोनाउन आई. हम एकेडमिक राइटिंग में आई नहीं लिखते, वी नहीं लिखते, लेकिन ये तो अभी गपशप है, इसमें लिखा करें आई. आई राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, to communicate with the reader, to impress. So impress me, Shakir Zaidi, with something. I write to make documents. Documentation. Okay. This is another reason of writing. Documentation. It is skill which we express. I express. Farkhanda Zeb, I. Please start using the pronoun I. I express my thoughts and ideas. My thoughts and ideas. Confidence. When you start using I in informal discussions, so this gives you a lot of confidence. You start recognizing yourself. मतलब हम पूरी दुनिया को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते. Writing is Sophia Chughtai. Writing is dominant method of expressing and sharing data. How dominant method? What is the proof, the evidence of this claim, Sophia Chughtai? Please write on it. Why it is dominant? Do you think that writing is more important than speaking? Is dominant method, more dominant method? Please write an adjective, more dominant, of expressing and sharing data. You can share data while speaking also. Why it is necessary to write for sharing data? Please elaborate on it. This is writing workshop, so you have to write. Workshop. Here only not shopping, but also working. I write to make my writing more effective and clear. I write to make my writing redundant. बिलाल अजीज, ये क्या बात हो गई? मैं लिखता हूं कि मेरा लिखना. No, I write to make my expression effective and clear. Do not use the same write and writing again. Redundant, tautology, neoplasm. Please write these words. Has anybody shared the link in 3 WhatsApp groups? Please confirm it. I write to make my writing, no, my expression, my communication. Writing is the art of language. I write to deliver my message and express ideas through words. Exactly. Salman Wazir. Reading without writing is hardly worthy. Hardly worthy. Reading without writing is hardly worthy. So why do you write? This is the question. How do you write? Why do you write? What do you write? I write to, please share it in Safe ELC also and Safe 2. I write to communicate with people, and it is permanent record of communication. Yes, correct. Shakir Zaidi. I write to make a reader aware of my thoughts. Good. Correct. Okay, so most of you have written the reason why I write. Why I write. Sophia, please substantiate
write the verb substantiate. Substantiate your claim. It is writing workshop. Writing workshop. Substantiate your claim. Substantiate. It means put some meat, some substance. इसमें कुछ चीज डालो. Dominant is it is oldest method. Totally against history and science. Why we say parts of speech? Parts of speech means parts of spoken language. Spoken is the oldest. Speaking is the oldest. When human being started using language, so the first mode of communication was speaking, sounds, phonemes, not morphemes. Technically, phoneme, P-H-O-N-E-M-E, phoneme. Phoneme means phonetic unit, the unit of sound, not morpheme. Morpheme is very latest, maybe 3,000 years, maximum 4,000, 5,000 years, maximum. Writing started in Egypt, old Egypt, ancient Egypt, around 3,000, 4,000 years back. Then it went to Greece, and from Greece it came to India, and from India it went to Arab world, then Iran, then again it came to India. So it is a very latest thing, 3,000, 4,000 years old. अभी भी दुनिया में जो है, पाकिस्तान में 110 million people cannot write. 110 मिलियन लोग जो है लिखाई नहीं कर सकते, तकरीबन around about 50% is our literacy rate. If we make it 60%, अगर पाकिस्तान में जो राइटिंग है, लिटरेसी है, उसको अगर हम कितना करें, 50% करें या 60% करें, तो 220 मिलियन है. तो आधी आबादी जो है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट राइट, बिकॉज राइटिंग इज लिटरेसी, रीडिंग इज लिटरेसी, स्पीकिंग इज नॉट लिटरेसी. हाउ मेनी डम पीपल विल बी देयर इन पाकिस्तान? मे बी 0.5%. पाकिस्तान में कितने लोग डम है? DUMB, डम. डम मीन्स डम, डेफ, ब्लाइंड, डेफ. प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेफ, DEAF, डेफ. अंधे, गूंगे, बहरे बहुत कम होंगे, 0.5%. मुझे नहीं पता, कोई गूगल करे. पाकिस्तान में गूंगे लोग कितने हैं? बहुत कम. लेकिन रीडर राइटर्स मिलियंस में. Thank you, Reza, for sharing the link. So we were discussing that why we write and how we are writing and the history of writing. That is very latest, very recent. इंसान पहले सिर्फ बोलता था, लिखता नहीं था. अभी भी बहुत सी ज़बानें हैं जिसमें लोग नहीं लिखते, सिर्फ बोलते हैं. Okay, now coming to the next point in the workshop, that is how to write. Some people have phobia. Can you write the names of the three phobias that I have given you in the title? ये जो टाइटल है, इसमें मैंने आपको 3 फोबिया का नाम दिए हैं. फोबिया इज़ अ डिजीज़, ये ख़तरनाक बीमारी होती है, इसका बाकायदा इलाज करना चाहिए. सम पीपल दे हैव फियर, वो आम से फियर होती है, कोई बात नहीं. फियर इज़ नेचुरल, फियर इज़ नॉर्मल,
फोबिया इज नॉट नॉर्मल। जो फियर होते हैं वो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब है रियल है, वो होता है, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली गल नहीं है। फोबिया जो है ख़तरनाक चीज़ है और उसके लिए आपको बाकायदा इलाज करना पड़ेगा उसका। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बीमारी है कि लोग फेसबुक से जो है अपनी इलाज कराते हैं, वो नहीं होता उससे इलाज। उसके लिए बाकायदा आपको क्लिनिक जाना पड़ता है कि जी मुफ्त में जो है, मुफ्त में मेरी इलाज हो जाए। मुफ्त में किधर इलाज होता है? सो थैंक यू जरताशा खान। ग्लॉसोफोबिया, ग्रोपोफोबिया एंड स्क्रिप्टोफोबिया, दीज आर 3 फोबियाज। अब इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल जब आप लिखते हैं तो आप जो है बिल्कुल पागल हो जाते हैं, ठीक है ना? आप बिल्कुल, आपका दिमाग उल्टा हो जाता है। You start trembling, you start, have some body things and you cannot write, perspiration, sweating, पसीना पसीना हो जाता है, ओ जी हल्का आपका खुश्क हो जाता है। भी बस राइटिंग करूँगा तो मर जाऊँगा, खाएंगे लोग मुझ पे तीरों की बारिश करेंगे अगर मैंने लिख लिया। तो जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिसने ज़िंदगी में एक कमेंट भी किया है या एक टेस्ट में हिस्सा लिया है, एक मंथली या वीकली एग्जाम में एक दफ़ा हिस्सा लिया है, तो उसको फोबिया नहीं है। फोबिया वाली बड़ी ख़तरनाक होती है, उनको नहीं होता। कुछ लोगों को ये जो ग्लॉसोफोबिया है, पब्लिक स्पीकिंग, ग्राफोफोबिया, स्क्रिप्टोफोबिया, पब्लिक राइटिंग वैसे तो बहुत लिखते रहते हैं। बाथरूम सिंगर्स तो बहुत होते हैं। स्टेज पे सिंगिंग जो है वो खतरनाक है। सो इफ यू कैन सिंग alone and you cannot sing on the stage, so you may have some kind of phobia, and that is scriptophobia, glossophobia. Glossophobia is for speaking, scripto and grapho, that is for writing. Public, that is important, public। अकेले में किसी को डर नहीं होता। अगर आप अकेले में, फोबिया का मतलब ये कि पब्लिक में, अगर आप अकेले में भी डर दिए तो फिर तो बहुत ख़तरनाक बात है। मतलब जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं और आप कोई पेन कागज़ नहीं ले सकते लिखना, आपके हाथ टूट जाते हैं इस तरह, फिर तो वो कोई फिज़िकल इशू है, मेंटल नहीं है। मतलब एक फिज़िकल इशू है, एक मेंटल है। फिज़िकल का मतलब कि आपका हाथ काम पर आया है, ठीक है ना, आप नहीं लिख सकते, आप फिज़िकली आपसे नहीं लिखा जाता, तो वो तो एक फिज़िकल प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम ये कि पब्लिक में होता है, अकेले में नहीं होता, ठीक है ना। बहुत से लोग अकेले वॉशरूम में बड़े तेज़ होते हैं, लेकिन पब्लिक में जो है फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो ग्लासोफोबिया जो है दैट इज़ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। स्क्रिप्टोफोबिया और उसमें जो है अपना ग्राफोफोबिया दैट इज़ पब्लिक राइटिंग। दोनों एक ही नाम है, स्क्रिप्ट, स्क्राइब इसका मतलब है राइटिंग, ग्राफ का मतलब भी राइटिंग है। ओके, नाउ वी कम टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है इसका? Anybody can give me the solution? I have given you the 2 solutions in the title. तो हसन बिन जमील साहब जो है बड़ा प्राउड है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि फोबिया इसको नहीं है, लेकिन इसको प्रॉब्लम क्या है? इसको ग्रामर का प्रॉब्लम है। अब क्या करें? बड़ा हमारा सीनियर स्टूडेंट है और कल हमारा फैकल्टी मेंबर होगा, CSP भी बन जाएगा, लेकिन ग्रामर का इशू। अब क्या करें ग्रामर के साथ? मतलब मैंने पूरा महीना आपको वर्ब पे लगा दिया कि भाई वर्ब जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मजाल है कि उसको सही लिखे। मैंने आपको 50 दफ़ा कहा कि हैव जो है, हैव ये प्रिंसिपल वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है।
तो समझिए जल्दी एकदम से, आई डोंट हैव दीज फोबियाज। बस एनी भी न लिखो, एनी की जरूरत नहीं है। जब डोंट आ गया तो एनी कहाँ से लाते हो, क्या जरूरत है? ठीक है ना? तो ये अब क्या करे बंदा, फोबिया आपको नहीं है, लेकिन आप ग्रामर जो है वो हमें करना पड़ेगा। इस पे मैं आ रहा हूँ। सो आई डोंट हैव दीज फोबियाज, बस। अब एनी लगाना, घुसाने की क्या जरूरत है? मतलब ग्रामर जो है वो एक लॉजिकल चीज होती है। ग्रामर जो है आपको इलॉजिकल तो नहीं है। जब एक चीज की जरूरत नहीं है तो आप क्यों डालते हो उसमें? सो अमारा मुख्तार हैज गिवन अस द फर्स्ट आंसर एंड दैट इज फ्लडिंग। फ्लडिंग मीन्स कि भाई बाहर तो आप नहीं लिख सकते, एक हमाम में सारे नंगे हैं, आप आ गए, आपने सेफ में दाखिला लिया, 5-6-10 हज़ार रुपये दे दिए, ठीक है? तो सेफ क्या कर रहा है? फ्लडिंग कर रहा है आपका, फ्लडिंग। हर वक्त जो है नईम खान का मुंह खुला रहता है, जी प्लीज़ राइट। डेली आपको असाइनमेंट देता है, 50 दफ़ा उसको अनाउंस करता है, कहते हैं यार सेफ 2 में कुछ लिखो, पार्टिसिपेट करो, कुछ तो करो। तो साइकोलॉजी में इसको कहते हैं फ्लडिंग। उस बंदे को वो चीज़ ले आओ उस पर, ताकि उस पर बारिश हो जाए, कहीं ना कहीं उसको फिर पता चले मैं बस बड़ा शर्मिंदा हूँ, इतने लोग लिख रहे हैं, मैं कौन सा बोतल खान हूँ, मुझसे नहीं लिखा जाता। तो ये साइकोलॉजी का बाकायदा तरीका है फोबिया ख़त्म करने का, कि भाई जिस चीज़ से आप डरते हैं उसकी बारिश कराओ अपने ऊपर। फ्लडिंग ये बाकायदा साइकोलॉजी का मेथोडोलॉजी है। फ्लडिंग, इतना ज़्यादा एक माहौल में जाओ, मसलन आपको क्लास्ट्रोफोबिया है, तो यू शुड गो टू एलिवेटर्स, और बाकायदा साइकोलॉजिस्ट आपको ले जाता है एलिवेटर्स। एलिवेटर का क्या मतलब है? लिफ्ट, LIFT, वो जो बिल्डिंग में होते हैं लोगों को ऊपर ले जाने का, क्योंकि क्लास्ट्रोफोबिया, छोटी सी जगह से बंदे को डर होता है, डार्क प्लेसेस। तो साइकोलॉजिस्ट जो है बाकायदा उस बंदे के साथ निकलता है, उसको एक बड़ी शॉपिंग मॉल में ले जाता है और 50 एलिवेटर्स में उसको घुसा देता है, तो उसका जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये दिस मेथोडोलॉजी इन साइकोलॉजी इज कॉल्ड फ्लडिंग, कि जिस चीज़ से आप डरते हैं एक कंट्रोल प्रोग्राम में जाओ, कंट्रोल, जहां आप स्टूडेंट फील करते हो, जहां आपका कोई टीचर हो, टीचर के साथ आपका कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, आपका भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, माँ है, बाप है, कज़न है, उनके साथ तो आपकी दुश्मनियाँ हैं, उसके साथ तो आपकी जो है कहानियाँ हैं, यार मैं लिखूंगा, ये देखेगा, ये मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बिल्कुल न लिखो, उसको पता ही नहीं चले। तो जो लोग आपको जानते हैं उनके साथ तो आपको डर होता है। इस वजह से लोग जो है वो अपने गांव को छोड़ के सिटी में चले जाते हैं, ताकि लोग उसको न जाने और वहाँ जो मर्जी है करे। गांव में तो तुमने चींक भी मारी तो पूरे गांव को पता चल जाता है, जी आज उसने चींक मारा है, उसको कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये साइकोलॉजी का एक तरीका है कि जब भी आप किसी चीज़ से डरते हैं, आप एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम में जाए, कंट्रोल्ड प्रोग्राम में, जिस तरह कि सेफ ऑनलाइन, सेफ 5, ये एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। मैं आपको लताड़ता भी हूँ, आपकी बेइज्जती भी करता हूँ, ठीक है, आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन आप मुझे एक्सेप्ट करते कि यार ये मेरा टीचर है, करने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। शर्मिंदा भी हो जाओ तो कोई बात नहीं है, आज मैं शर्मिंदा होगा, कल उसकी बारी है, आज ये हंस रहा है, कल मैं हंसूंगा उसके पीछे। तो ये एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम है फ्लडिंग। भाई फ्लड कर रहे हैं हम आपकी, कोई ना कोई खतरा जो है आपके दिमाग में पड़ जाएगा। एंड द सेकंड इज सिस्टमैटिक desensitization. Systematic desensitization. Now this is the second method how to deal with phobias. जो भी फोबिया है, राइटिंग फोबिया है आपको, ग्लासोफोबिया है, क्लास्ट्रोफोबिया है,
स्क्रिप्टोफोबिया है, जो भी फोबिया है आपको खुद पता है। तो उसका दूसरा तरीका क्या है? सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। बंदे को फोबिया क्यों हो जाता है? दिस पर्सन बिकम्स हाईली सेंसिटाइज्ड, हाईली सेंसिटाइज्ड। ये बहुत ज्यादा हसास हो जाता है, बहुत ज्यादा हसास हो जाता है। वो समझता है जी मैंने कमेंट किया, मैंने गलती की, मेरे तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मुझे तो फिर कोई रिश्ता नहीं देगा, मुझे तो फिर लोग गांव से निकालेंगे, मेरे साथ तो फिर लोग खाना नहीं खाएंगे। तो बस आराम से बैठो, कुछ ना करो। सो दैट इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। तो डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि यार ये अपनी हसासियत खत्म करो, ये क्या तो कुछ नहीं होता, उसने इतनी 50 गलतियां की, क्या हो गया उसको, मैं भी करता हूं तो क्या होगा। सिस्टेमेटिक, ऑर्गेनाइज तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता। आज छोटा सा जो है ना आपने कमेंट किया, फिर एक पैराग्राफ लिखा, फिर एसे लिखा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। और आप अपना जो हसासियत है, आपकी जो सेंसिटिविटी है, उसको आप आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। एक तो फ्लडिंग है, एकदम से प्रोग्राम में जाओ। फ्लडिंग में तुम बड़ी पानी से डरते हो, लेकिन जब शावर आएगा, बारिश बरसेगा, तो तुम्हें भीगना पड़ेगा, उससे तो बचना ही नामुमकिन है, क्योंकि तुम प्रोग्राम में हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट है। आपको पानी से डरता है और आपको धकेला जाता है पानी में, पुश करते हैं, तो आपको भीगना तो पड़ेगा, फिर तो कोई तरीका नहीं है। दूसरा ये कि आराम आराम के साथ जो है सिस्टमेटिक तरीके से डिसेंसिटाइजेशन। So these are the two methodologies, strategy in psychology, that how you deal with phobias. If you are sincere, अगर आप सिंसियर है अपने फोबिया ख़त्म करने के लिए, आपको परवाह ही नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब इफ़ यू आर नॉन शैलेंट, CHALANT, नॉन शैलेंट मीन्स इनडिफरेंट। मुझे परवाह नहीं है, मुझे फोबिया है, मुझे फोबिया नहीं है, मुझे मरज है नहीं है। सो दैट इज नॉन शैलेंट, इनडिफरेंट, बेपरवाह, लापरवाह, केयरलेसनेस। एक बंदे को एहसास ही नहीं है तो फिर उसका क्या करें? बिकॉज ignorance is the death of knowledge. Ignorance is the death of knowledge. Please write it. Ignorance is the death of knowledge. इल्म क्या, मौत क्या है? जहालत से जहालत। When you don't know that I am patient, कि हम पेशेंट है, मुझे कोई मरज है। जब आपको मरज का ही नहीं पता तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। Why do we have phobias? It is a very deep question based on psychology and philosophy. Why? When why comes, so we should become philosophical. Philosophy means analysis. There are many reasons. Genetic, DNA, family, inheritance, environment, surrounding, peer pressure, extra burden on your nerves. तो इसके बहुत है, हम किसी साइकोलॉजी के क्लास में इस पे बात करेंगे। नाउ वी कम टू द टॉपिक विच इज राइटिंग वर्कशॉप. So we have two formula. If you have no phobias, still you have some fear, or you have less competence for your communication and your competition. CCC. आप ठीक ठाक है, आपको कोई मरज नहीं है, आपको फ्लडिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है,
तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको नहीं आता मतलब राइटिंग का, आपको मतलब ग्रामर नहीं आता, आपको इश्यूज़ है, बिकॉज राइटिंग इज़ अ स्किल, ये एक स्किल है, एक हुनर है, इसको सीखना पड़ेगा। अब एक बंदे को ड्राइविंग से डर लगता है, नहीं जी मैं ड्राइविंग नहीं करता। एक ये है कि उसको यार आता नहीं है कि ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, एक्सेलरेटर क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। तो वो एक स्किल है, वो आपको सीखना पड़ेगा, कोई आपको सिखाएगा, आप सीख जाओगे। सो राइटिंग इज आल्सो अ स्किल लाइक ड्राइविंग, बट यू हैव टू डू इट। द प्रॉब्लम इज दैट राइटिंग इज अ स्किल, ये खुद करना पड़ेगा, किसी और से ये नहीं होगा। So we have two important formulae which already I have given you. One is alpha. Please write it. Accurate, accuracy, logic, factuality, appropriacy. The first formula for writing is अल्फा, ALFA। ये आपको अपनी राइटिंग पे लिखना पड़ेगा मोटा मोटा, अल्फा। आपकी राइटिंग में ये 4 चीजें मस्ट होनी चाहिए, वरना आपकी राइटिंग नहीं है। अल्फा, एक्यूरेसी, लॉजिक, फैक्चुअलिटी एंड एप्रोप्रिएसी। ये 4 चीजें राइटिंग में मस्ट है। इफ यू वांट टू मेक इट इंप्रेसिव, इम्पैक्टफुल, इफेक्टिव, सो इट मस्ट हैव अल्फा। इसमें अल्फा जो है वो जरूरी है। एक्यूरेट मीन्स ग्रामर, एक्यूरेसी मीन्स ग्रामर। ग्रामर पे नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। ग्रामर बहुत फजूल चीज है, ग्रामर के साथ आप नहीं खेल सकते, नो वे। सो ग्रामर एंड द सेकंड इज लॉजिक। नाउ रिमेंबर दैट वी हैव थॉट्स and we have opinion. Thoughts are personal, opinion is public. अब आपके दिमाग की किचड़ी में जो भी चल रहा है, मुझे क्या है, चलने दो। थॉट्स, ओके, थॉट्स आपके दिमाग के अंदर जो भी है वो आपका अपना मसला है, आपका अपना जाती जायदाद है। थॉट दैट इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है। कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेस, आपके दिमाग, ब्रेन जब काम करता है, मेरा हाथ जब काम करता है, ये जो मेरा हाथ है ये काम करता है, ठीक है, तो ये मेरे हाथ का काम है। मेरा दिमाग भी काम करता है, वो भी एक ऑर्गन है बॉडी का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन जो भी करते हैं करने दो, आपका अपना काम है। आप अपने हाथ के साथ क्या करते हैं मुझे क्या पता। लेकिन आपका जो ओपिनियन है दैट इज पब्लिक, उसके साथ मुझे, नईम खान यार बड़ा अगली है, नईम खान के नाक को देखो क्या है, ये आपने मेरे बारे में ओपिनियन बनाया। अब मैं कहता हूं तुम कौन हो मेरे बारे में ये ओपिनियन देने के लिए। सो वी मस्ट बी वेरी कॉशियस इन ओपिनियंस, बिकॉज ओपिनियन इट हैज इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन, इट इज पब्लिक। तो जब आप राइटिंग करते हैं और आप एक ओपिनियन देते हैं पाकिस्तान के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, कश्मीर के बारे में, वो आपका ज़ाती ओपिनियन है। लेकिन ख्याल रखो कि यार इसमें जो है, अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने डीप पॉकेट्स कहा, तो डीप पॉकेट जो है उसने कितना बड़ा वो बना दिया मसला दुनिया में।
because that was not relevant at that time. It was not appropriate. Appropriacy. अब सारे लोग बाकी बातें भूल गए, उसके पीछे लग पड़े। पूरी दुनिया जो है वो हॉट टॉपिक बन गया जी। उसका एक गलत ओपिनियन की वजह से पूरा हमारा वो मार्केट खराब हो गया पूरी दुनिया में। So when we write, we give opinion. Opinion is for other people, and for that we must be very cautious. क्योंकि इंसानी दिमाग जो है उसको सस्पेंस चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, स्कैंडल चाहिए। हाँ जी, तो आज तो नईम खान ने जो है ये अच्छा, उसमें बड़ा मज़ा आता है। वो वैसे 50 किताबें लिखते हैं, कोई नहीं पढ़ता। तो ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी जो है ये बड़ी फजूल चीज़ है। तो ओपिनियन जो है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ओपिनियन। Deep pocket means that Jews, they have a lot of money. Their pockets are full of money. Deep pockets. They spend money on journalists, on media. They buy media. आप सामने एक जर्नलिस्ट को कह रहे जी डीप पॉकेट, वो भी जर्नलिस्ट है CNN का। सामने आप बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे कि जी आपने पैसे लिए हैं, इस वजह से आप जो है इज़राइल की ओपिनियन का जो है वो कर रहे हो। उस लड़की ने भी सारा, औरत ने सब कुछ छोड़ दिया, उसके पीछे पड़ गई कि आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया पूरी मीडिया दुनिया के सामने। सो दीज आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स। सो व्हेनेवर वी गिव ओपिनियन, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो और चीज़ है। अब यहाँ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, क्लास है, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, तो आप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन जब आप एग्जामिनर के साथ या कुछ ऐसे बंदे के साथ जो दैट इज नॉट सो क्लोज टू यू, सो योर ओपिनियन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, कॉशियस, कॉन्शियस ओपिनियन. So we have accuracy, which is grammar, and then the other thing that we have in alpha, that is logic. Logic means कि ऐसी बात करो जिसका कोई लॉजिक हो. आपका ओपिनियन जो है वो लॉजिकल लगे, कन्विंसिंग लगे. And the next is factuality, facts and figures, science, philosophy, बिल्कुल एनालिसिस, बिल्कुल आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना ठीक होने चाहिए. साइंस एंड फिलॉसफी दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. नाउ रिलीजन, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो है दैट इज वो आपके ओपिनियन हो सकता है, आपके इमोशंस हो सकते हैं. साइंस में, फिलॉसफी में फिर इतने इमोशंस नहीं चलते. फैक्ट्स, फैक्चुअलिटी. एंड द लास्ट थिंग इन अल्फा, that is appropriacy according to the situation. Now the next formula that we have, that is adicule. I have already explained it. I will explain it again quickly, briefly. Adicule. Please write it, adicule. Who can tell me what do you mean by adicule? Adicule. Do you know what is adicule? Anybody? So we have to write academically. In alpha you can write anything. अल्फा में जो है वो तो आपका एक्यूरेसी मस्ट है, लॉजिक मस्ट है, फैक्चुअलिटी मस्ट है, एप्रोप्रिएसी मस्ट है. लेकिन एडिक्यूल जो है वो, अभी थोड़ा सा सबर करो. एडिक्यूल जो है वो, अब जरताशा खान ने इसको कहा ले गया एल्ट्रुइज्म. शाबाश. एल्ट्रुइज्म क्या है? एल्ट्रुइज्म यहाँ कोई इसका काम नहीं है. वी आवर फोकस इज ऑन राइटिंग. सो एडिक्यूल,
academic, data, information, knowledge, expression, understanding, literary. This is edicule. Now we will apply these two formulae on your paragraphs. Thank you, Hassan Jamil. Yes. Academic, data, information, knowledge, expression, understanding, literary. You have made some mistakes. तो जब आपने एकेडमिक लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है, पहले तो आपको एकेडमिक होना पड़ेगा. एकेडमिक के लिए क्या ज़रूरी है? आपके पास डेटा, इंफॉर्मेशन. सिस्टमेटिक डेटा इज इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज. And when you express it in writing and speaking, then it becomes understanding. And for essay writing, you have to make it literary. Literary. So this is edicule. ये दो फार्मूले आप याद रखिए, अपने टेबल पे लगाए, मोटा मोटा. अल्फा एडिक्यूल. डेटा नहीं है, डेटा को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को मजीद सिस्टमेटिक करते हैं, इट बिकम्स नॉलेज. नॉलेज का जब आप एक्सप्रेस करते हैं राइटिंग और स्पीकिंग में, इट बिकम्स अंडरस्टैंडिंग. और जब आप इसे लिखते हैं, सो इट शुड बी लिटरेरी एज वेल. नाउ what is the difference between knowledge and understanding? When you can manipulate knowledge by creative expression, then it is called understanding. Understanding और knowledge में क्या फ़र्क है? Understanding और knowledge में ये फ़र्क है, आपने डेटा जमा किया, उसको इंफॉर्मेशन बनाया, इंफॉर्मेशन से आपने नॉलेज बना दिया, नॉलेज आपके पास आ गया. ठीक है, ये चाय जो है मैंने बना दी, तो ये मेरा नॉलेज है. अब इस चाय को मैं किस तरह पीता हूँ? मैनिपुलेट द वे आई वांट. मेरी मर्जी में जिस तरह पी लूँ, ऐसे पी लूँ तो ऐसे पी लूँ तो ऐसे पी लूँ. आई एम रिलैक्स. मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है. मैं डरता नहीं हूँ कि जी मैं चाय इस तरह पी रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे. मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है. लोग डरते हैं जी मेरे मुंह से आवाज़ निकलेगी चाय की तो लोग क्या कहेंगे. लेकिन जब आप अपने लोगों में होते तो फिर आपको डर नहीं होता. अब ये भी करते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप रिलैक्स है, कोई डर शर नहीं है आपको. तो ये जो कॉन्फिडेंस है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. जब आप में अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके पास बेशक बड़ा नॉलेज होगा, इतना बड़ा नॉलेज होगा, पूरा लाइब्रेरी आपने याद किया है, लेकिन सेफ टू में जाके आप घुस टुस जो हो जाते, कोई आपके मुंह से बाजी नहीं निकलती, क्योंकि आपके पास नॉलेज है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है. The test of understanding is expression. The test of understanding is expression. कॉन्फिडेंस के साथ फिर स्टाइल आ जाते हैं, फिर आपकी मर्जी है, जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, टॉपिक जो जिस तरह पूछे जो भी करे आप कर सकते हैं. मैनिपुलेट मीन्स यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट. अब लोग डेटा जमा करते हैं, मतलब पैसा लोग जमा करते हैं, लेकिन पैसे का जो इस्तेमाल है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. तो एग्जाम में दैट इज द टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. आपको एक टॉपिक की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब यह है कि इसको आप अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी के साथ आप इसको किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं.
अब राइटिंग वर्कशॉप है, आप देख रहे हैं मेरे स्टाइल को, मैं किस तरह कर रहा हूँ, कभी ये कभी वो। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो एक टेक्निकल चीज़ को मैं अपने स्टाइल से आपको पहुंचा रहा हूं। तो जब भी आपके पास नॉलेज आता है और आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि यार मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि सिर्फ नॉलेज है, एक्सप्रेस करो उसको, लिखो, बोलो, फिर पता चलता है। सो नाउ वी कम टू द एक्सप्रेशन स्टेज कि भाई आप कितने पानी में है। दूसरे को सुनना बड़ा आसान है, दूसरों को सुनाना बड़ा मुश्किल है। दूसरे का पढ़ना बड़ा आसान है, दूसरों को पढ़वाना जो है बड़ा मुश्किल है। तो आपने मुझे 1 घंटा तो सुना, तो अब वो मैं आपको पढ़ना चाहता हूं कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंट टॉपिक्स। यू हैव 3 choices. Please write the 3 choices. Number 1, socio-economic and political problems of Pakistan. Number 2, global issues including Palestine, Kashmir, global warming, globalization, nuclear deterrence, SDGs, Sustainable Development Goals. Number 3, my yesterday, today and tomorrow. My yesterday, today and tomorrow. मेरा गुजरा हुआ कल कैसा था, आज कैसा है और कल कैसे होना चाहिए। So you have these 3 options, or 4th option, any topic of your choice. टेक्निकली लिखे ताकि मैं उसमें आपको कीड़े निकाल सकूं, ज़रा सीरियस किस्म के लिखे। मैं उसमें क्या ढूंढूंगा? ग्रामर, लॉजिक, फैक्ट्स, एप्रोप्रिएसी। फिर मैं इसको देखूंगी एकेडमिक है कि नहीं है, इसमें डेटा है कि नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आपका एक्सप्रेशन अंडरस्टैंडिंग कैसा है, लिटरेरी कोई रिटोरिकल डिवाइस, कोई ईडियम मीडियम आपने डाला है कि नहीं डाला। प्लीज राइट दिस पॉइंट। आई एम गोइंग टू राइट बट सर विल चेक। ये लिखे, सारे लोग लिखे। डिक्टेशन तो कम से कम करें, जो मैं आपको डिक्टेट करता हूं वो तो लिखो, वो भी राइटिंग है। I am going to write on one of these 4 topics, keeping in view that sir will check. Number 1, alpha. Number 2, edicule. मैं आपकी राइटिंग में ये दोनों चीजें ढूंढूंगा, एक्यूरेसी, लॉजिक, फैक्ट्स, एप्रोप्रिएसी, एकेडमिक, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, लिटरेरी। मतलब इसको याद करके लिखो, कॉन्शियस राइटिंग करो, अनकॉन्शियस नहीं। मतलब अपने आंखें खोल के, दिमाग खोल के लिखो। आई एम गिविंग यू 5-10 मिनट्स। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अब आराम से लिखे, ये वर्कशॉप है, हमारे पास बहुत टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। तो 5-10 मिनट तक आप खूबसूरत 1, 2 या 3 पैराग्राफ लिखे। मैं 2 चीज़ें चेक करूँगा, जिस तरह के बिलाल अजीज़ जरताशा खान ने लिखा, अल्फ़ा एडिक्यूल। ये 2 चीज़ें मैं चेक करूँगा कि इसमें अल्फ़ा और एडिक्यूल है कि नहीं है। तो जब आप लिखते हैं तो ये माइंड में रखें, ये 2 फार्मूले अपने राइटिंग के ऊपर, अपने नोटबुक, जो आपका नोटबुक है, उस नोटबुक पे ऊपर मोटा मोटा लिखो, अल्फ़ा एडिक्यूल।
क्विकली रिव्यू ऑन अल्फा। अल्फा ये है कि भाई एक्यूरेसी, ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, ग्रामर, एक्यूरेसी मीन्स ग्रामर। ग्रामेटिकली आपकी राइटिंग ठीक होनी चाहिए, उसका स्पेलिंग, टेंस, पंक्चुएशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास। नंबर 2 जो है लॉजिक। लॉजिक का मतलब ये है कि वो चीज़ कन्विंसिंग हो, रीजनेबल हो, आपका ओपिनियन भी दिल को भाए, दिमाग में बैठे कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है। ये नहीं कि डिस्ट्रॉय इजराइल, डेथ ऑन इजराइल, वी डू नॉट वांट इजराइल, ख़त्म करो जी, तमाम यहूदियों को मारो। तो ये लॉजिकल नहीं है, आपके ज़ाती जज्बात है, हम इसके कदर करते हैं, लेकिन ये कोई लॉजिक इसमें नहीं है। लॉजिक का मतलब है आर्गुमेंट, प्रूफ करो उस चीज़ को। अगर आप डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हैं तो कोई नज़रिया निकालो, कोई आइडियालॉजी निकालो, कोई चीज़ निकालो, उसकी बुनियाद पे इजराइल को ख़त्म करो, लेकिन कोई लॉजिक हो। फिर फैक्ट्स दे दो, फैक्चुअल पोजीशन क्या है, फिगर्स दे दो, स्टैटिस्टिक्स, एविडेंस। और ए जो है एप्रोप्रिएसी का मतलब है मनासिब होना, मौका के मनासिबत। मतलब आप फ़लस्तीन पे लिख रहे तो फ़लस्तीन पे लिखो, उसमें जो है वो लेडी डियाना पे मत लिखो, ठीक है ना। आप फ़लस्तीन पे लिख रहे हैं तो ये मत लिखो कि यार मेरा पेट आज ख़राब है, क्योंकि पेट के ख़राबी और फ़लस्तीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एप्रोप्रिएसी, मौका के मनासिबत से लिखो। एप्रोप्रिएट लिखो कि भाई ये सिचुएशन क्या है, मनासिब है या मनासिब नहीं है। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो करो, वरना मैं जाता हूँ, आपको 5-10 मिनट देता हूँ, आप आराम से 2-3 पैराग्राफ लिखे। बेहतरीन ये है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, कम अज़ कम राइटिंग में ये 3 चीज़ें मस्ट है। पहले आप इंट्रोड्यूस करें, फिर एक्सप्लेन करें, फिर एनालाइज करें, रिकमेंड करें, और आखिर में कंक्लूड करें। कंक्लूजन में कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, रिकमेंडेशन इससे पहले आनी चाहिए। आपकी मर्जी है जिस भी टॉपिक पे लिखे, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ग्लोबल इश्यूज, जो भी ग्लोबल इशू आप लिखे, पैलेस्टाइन, कश्मीर, ग्लोबलाइजेशन, न्यूक्लियर डिटरेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारे 12-15 जो बड़े बड़े मोटे ग्लोबल इश्यूज है उस पे लिखे। या माई यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। यस्टरडे में आप परेशान होंगे कि जी मुझसे दिन चला गया, आज मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन टुमारो आई एम डिटरमिन्ड कि मैंने टुमारो को ज़ाया नहीं करना। या एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, कोई भी टॉपिक। यू हैव 5 to 10 मिनट्स, आराम से लिख के। आप बेशक यहाँ छोड़ के वापस आ जाए, लेकिन टाइपिंग ज़रूरी था कि मैं इसको सही से पढ़ सकूँ।
If you have completed your writing, so you can submit it. So I have the first one, Huma Khan. Poverty. The state of being extremely poor is. Huma Khan, what kind of definition is this? The state of being extremely poor is called poverty. What is thirst? What is hunger? The state of being very hungry is called hunger. ये कौन सा डिफिनीशन होता है? एग्जामिनर इसको देख के आपको क्या देगा? पॉवर्टी का टेक्निकल डिफिनीशन है, देखो विकिपीडिया में देखो. व्हाट इज पॉवर्टी? एनीबॉडी? पॉवर्टी क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? हाँ, आगे आपने लिखा है एसेंशियली पॉवर्टी रिफर्स टू लैकिंग इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. इधर से शुरू करो. आपका हुक ही गलत है. हुमा खान, आप सुन रही है मुझे? कमेंट में लिखो, यस सर, आई एम लिसनिंग टू यू. आई अंडरस्टैंड दैट माई हुक वॉज रॉन्ग. आपका पहला इंप्रेशन ही गलत है. मतलब ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि जी व्हाट इज हंगर? द स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली बीइंग हंग्री इज हंगर. ये एसेंशियली निकाल के पॉवर्टी को याद से शुरू करो. ये आपका एक स्ट्रॉन्ग हुक होगा. पॉवर्टी रिफर्स टू लैकिंग इनफ रिसोर्सेस. ऊपर से आपने पॉवर्टी लिखा है, इधर से नीचे आपने पाकिस्तान इतना जल्दी घुसा दिया. टॉपिक भी बड़ा ज़रूरी है कि भाई अब टॉपिक आपका क्या है? पॉवर्टी इन पाकिस्तान, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान. ये एप्रोप्रिएट नहीं है. पहले इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी को डिफाइन करो, उसके टाइप्स बताओ. ADB. The main cause of poverty is the social dishonesty and demeanor of people who is not well aware of present conditions. Singular plural जो है इसका ख्याल रखो. Singular plural. It's very important agreement. ये जो है एग्रीमेंट बड़ा ज़रूरी है. सिंगुलर प्लूरल. कंडीशंस होता है, कंडीशन नहीं होता. आपका पंक्चुएशन भी ठीक नहीं है. कैपिटलाइजेशन, सिचुएशन को आपने एस स्मॉल लिखा है. प्रोफेशनलिज्म मीन्स ज़ीरो एरर. कोई भी गलती ना हो, न छोटी गलती न बड़ी गलती. अच्छा, जब आपने बलूचिस्तान और पंजाब का देना है तो या तो मत दो या फिर चारों का देना है. गिलगित बल्तिस्तान का भी देना है. ये राइटिंग में क्या होता है? इसको कहते हैं एप्रोपिएसी. अल्फा में एप्रोपिएसी, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन है. आपने पंजाब बलूचिस्तान का दिया, बाकी का क्यों नहीं दिया? केपी का क्या कोई दुश्मन है आपके?
सिन वाले क्या उसने क्या आपका किया है, कौन सा जुर्म किया उन्होंने? तो या कोई मत लिखो या फिर सारे लिखो। आई होप यू गॉट द मैसेज। तो आपको 20 में जो है मैं कितने मार्क्स दूंगा? 5। रेजा, द टर्म ग्लोबल वार्मिंग वाज कॉइन्ड बाय एन एनवायरमेंटलिस्ट विल स्मिथ 75। एन एनवायरमेंटलिस्ट जो है ना, एन एनवायरमेंटलिस्ट, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, फैक्चुअल भी है और ये लॉजिकल भी लगता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आप जो है उस बंदे के बेइज्जती कर रहे हैं, विल स्मिथ के आप बेइज्जती कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं उसको। एन एनवायरमेंटलिस्ट, क्या जरूरत है एन लगाने की? सिंपल लिखो फेमस एनवायरमेंटलिस्ट और द एनवायरमेंटलिस्ट। ये एन जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। एग्जामिनर आपको इस पे आपको सजा देगा। दिस इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? बकवासियात है। इतनी फजूल गलती आप कैसे करते हैं? दिस इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज में भी इंक्रीज है? अपने लैंग्वेज को तो देखो। बाकी आपने डेटा शेटा दिया है, एकेडमिक है, सही है। ख्वाजा वलीद, आपको मैं मार्क्स दूंगा 20 में 9। ख्वाजा वलीद, SDGs, टेररिज्म, GDPs, शाबाश। GDP क्या होता है? ख्वाजा वलीद, आप GDP को आपने ग्लोबल इशू बना दिया। क्या है इसमें? फैक्ट किधर है? इसको प्रूव करो, मेरे साथ डिस्कस करो। ये वर्कशॉप है कि GDP कहां से ग्लोबल इशू बन गया। SDGs, terrorism, GDPs are some of the major global issues that Pakistan still faces in 21st century। मतलब GDP आपका एप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में आप GDP कहाँ से ले आए हो? ऐसा खल्त मल्त अपने लिए क्या है इसमें? कोई इम्प्रेसिव चीज़ क्या है? वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड इट इज़ करप्शन एंड। तो क्या है आपका SDG और टेररिज्म का इतना करप्शन के साथ क्या ताल्लुक है? मतलब 3 चीज़ें आपने क्यों डाल दी? एक डाल लेते बस, या GDP पे लिखते, या टेररिज्म पे लिखते, या SDG पे लिखते। फजूल किस्म की कम्बिनेशन आपने बना दिया, हौच पौच, जिसका न सर है न पाव है। उधर से अफगानिस्तान कश्मीर पे भी पहुंच गए। फिलॉसफी, साइंस, स्टैट, कोई सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपको 20 में मिलेंगे 3 मार्क्स, जस्ट 3। दोबारा लिखो, ह्यूमन पॉपुलेशन अब्दुल फहीम इज लीविंग, ह्यूमन पॉपुलेशन इज लीविंग अप ह्यूमन टुगेदर। ये क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन इज लिविंग अप ह्यूमन टुगेदर इन ए सोसाइटी। क्या बकवास बच्चों जैसी चीजें लिखते हो यार, कोई असर आपको लोगों पे नहीं होता। सेफ मैगजीन आप नहीं पढ़ते। वही बात जी, पावर्टी क्या है? गरीब, क्या लिखा था उसने? गरीब का होना पावर्टी है। ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है? जब ह्यूमन इकट्ठे रहते हैं। ये कौन सी बात है? कौन सी इसमें अचुम्बापन है? कोई नई चीज़ है? इम्प्रेसिव स्टार्ट भी आप यहाँ से ले रहे हो, आपका हुक भी ये है, फर्स्ट इंप्रेशन ये है। फर्स्ट ह्यूमन पॉपुलेटेड विलेज नोन टू द वर्ल्ड इज जेरिको। किसने कहा? मुझे तो नहीं पता। जेरिको, प्रेजेंट डे मिडल ईस्ट अबाउट। ये किसने लिखा है आपको? नेशनल फेल
ये मुझे तो नहीं पता जरीको का मुझे पता, लेकिन ये फर्स्ट किधर से बन गया? इंसान तो आ गया अफ्रीका में बना है, अफ्रीका से इंसान निकला है। ये देखो कहाँ से जरीको का आपके पास कोई सही एविडेंस है? अब्दुल फ़हीम, ये जरीको का मुझे ज़रा लिखो, इसका रेफरेंस किधर से है, कहाँ से आपने ये चीज़ उठाई है? अकॉर्डिंग टू वाई नेशंस फेल बाई असिमगो एंड रेमसन। अच्छा, ये देखो हर चीज़ पे यकीन भी नहीं करना। अब इंसान बना अफ्रीका में, जरीको तो मिडिल ईस्ट में, उधर से पहला विलेज कैसे बन गया? Since then, population has been the part of human life and it has reached up to 7.8 billion population of the world. जब आपने लिख लिया पॉपुलेशन अब्दुल फ़हीम, तो दोबारा क्यों लिखते हो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? इट हैज़ रीच अप टू 7.8 बिलियन, फुल स्टॉप, बस। अब दोबारा आगे लिखने की क्या ज़रूरत है? पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। डेटा शेट आपने सही दिया है, न्यूमेरस। अब न्यूमेरस जो है ये प्लूरल है, तो एग्रीमेंट क्या होगा प्लूरल का प्लूरल के साथ? रीजन्स, देयर आर न्यूमेरस रीजन्स। और ये 2-3 चीज़ों के अलावा बाकी ठीक है आपका, ज़बरदस्त। वाटर इनसिक्योरिटी एंड पाकिस्तान, तो आपको 20 में अब्दुल फ़हीम आपको मिलेंगे मार्क्स 11। द एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, वाटर इनसिक्योरिटी, नेशनल इनसिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट लिमिटेड टू मिलिट्री build up as well are now undergoing fast change in recent time. The water reserve in this country, Pakistan, is also gauging the importance of water security to ensure nations. Water scarce country. शॉक वेव्स। ओके, थोड़ा सा जो है ना इसको अपने जो स्टार्ट लिया हमारा मुख्तार, द एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट लिमिटेड टू मिलिट्री। आपको जो है ना एग्जामिनर के माथे पे आपको बल नहीं लानी चाहिए, एग्जामिनर को ऐसे नहीं देखना चाहिए क्या लिखा है इसने, नहीं, एग्जामिनर इजी होना चाहिए आपके राइटिंग के साथ। तो थोड़ा सा इसमें मुझे वो नज़र आया। The elements of the national security of a state limited to military build-up erstwhile are now undergoing fast change in recent times. The water security, तो ये जो है आपने इसको कनेक्ट करना है नेशनल सिक्योरिटी के साथ। आपने ये लिखना है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। A nation without life, without water will be a lifeless nation. That's why availability of sufficient clean water is significant for national security. बहुत जंप यहाँ नज़र आता है कि एकदम से आपने जंप लगाया। बाकी ठीक है। 20 में आपको मिलेंगे 15 बिलाल अजीज़, पैलेस्टाइन इश्यूज़। कितने इश्यूज़ है? एक ही इशू है यार, या तो डिफाइन करो कि प्लूरल सिंगुलर का ख्याल रखे। पैलेस्टाइन इश्यूज है या इशू है? इट हैज़ बीन 72 years when the issue of Palestine started. Till date, thousands of people have lost. have का फ़र्क करो, प्लूरल सिंगुलर। Palestine issue, there is no chance to overcome the tensions between Arab Israel. अब इतना जो है ना ग्लूमी पिक्चर मत दिया करो, ग्लूमी पिक्चर मत दिया करो कि भाई जी ख़त्म है, कुछ नहीं होगा। Regulation is without solving Palestine issue, there is no chance to overcome the tensions between Arab Israel. इतना भी वो नहीं है। पैलेस्टाइन को अब अरब वाले कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। One should be a little realistic. अब इजराइल ने खुद ही छोड़ दिया बमबारी, वरना तो सबको उड़ा सकते थे 1 सेकंड में। तो इतना जो है ना एक ग्लूमी पिक्चर या अनरियलिस्टिक पिक्चर मत दिया करें, अदरवाइज इट इज़
नॉट बैड। आपको 20 में 11 मार्क्स मिलेंगे। सोफिया चुगताई, प्रिंट मीडिया इज फेसिंग मल्टीपल challenges on global arena. It has largely failed to meet the demands. टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक तो दे दिया ना कि क्या है आपका टॉपिक। जो है प्रिंट मीडिया है या चैलेंजेस ऑफ प्रिंट मीडिया है, जनरल प्रिंट मीडिया है या कोई खास डायमेंशन है उसका। इट हैज़ लार्जली फेल्ड टू मीट द डिमांड्स ऑफ IT रिवोल्यूशन मोर। अच्छा, एग्जाम में याद रखिए कि IT मत लिखे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा लिखा करें, एब्रिविएशन में मत लिखे, क्योंकि ये एकेडमिक राइटिंग है। एकेडमिक राइटिंग में आप एब्रिविएशन नहीं लिख सकते। हाँ, आपके पास टाइम नहीं है तो पहले दफ़ा लिखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिखो IT, नेक्स्ट फिर IT लिख सकते हो। अब IT का क्या मतलब है? ईरान, टर्की भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकता है। Moreover, it is under influence of political and militant pressure groups. The phenomenon of the first to report in the electronic media has captured the attention of audience from a long time, which has it was noticed by 1 week monitoring workshop on print media in the United States. 2008 बहुत पुराना डाटा है, बहुत पुराना है। 2, 10, 12, 13, 14 साल हो गए, तो बस करो, कोई नई चीज़ दिया करो। बाकी ठीक है, फर्स्ट क्लास। 20 में आपको मिलेंगे 14 मार्क्स। फरखंदा ज़ेब, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। अच्छा, according to the recent report of IMF, Pakistan has ranked 3rd in the world in water crisis. The major problem of water crisis in good consolidated writing है। कराची 400-500 मिलियन, सही है। फरखंदा ज़ेब, तो आपको मिलेंगे 20 में 15 मार्क्स। कंसोलिडेटेड है, कॉम्पैक्ट है, ग्रामर की नहीं है। अगर कॉपी पेस्ट नहीं है तो हमें क्या पता। आपने 1 दफ़ा 2 दफ़ा गलती की है तो मेरे दिमाग से अब ये कैसे निकलेगा कि कॉपी पेस्ट शक हो जाता है। एग्जामिनर बहुत शक्की मिजाज होता है, डाउटफुल। एक बंदा उसकी नज़र में गिर गया तो गिर गया, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। Pakistan, being a resourceful country, has potential to prove its mettle in world, but since its inception, it has been facing many social economic. Shakir Zaidi, then Pakistan had to fight a war with India on Kashmir. Had to fight a war. कितना गलत बात है ये, अनफैक्चुअल। फैक्ट्स के आपने धज्जियाँ उड़ा दिए। एक वार नहीं किया ना। As a state in Pakistan had to fight a war. आगे आपने अगर लिखा नहीं है बाकी वार्स का तो फिर तो बहुत बड़ी गलती है। अगर आगे लिखा है तो फिर आपने कंपेंसेट किया होगा। 3 वार्स है ना, 2 तो नहीं है, 1 तो नहीं है। फैक्ट की गलती जो है बिल्कुल नाकाबिल माफ़ी है, गलत बयानी आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान बीइंग a resourceful country, okay. Then repeated dissolution of assemblies, अच्छा, has probably contributed to the disgruntled political system in Pakistan. These political upheavals in the country scarcely led the socio-economic fiber. सही है, good. According to Policy Research Institute Islamabad, industries are not contributing enough. आपने बहुत बड़ी चीज़ पकड़ी है, बहुत बड़ी चीज़, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो उसको संभालना मुश्किल था आपके लिए, लेकिन हाउएवर ग्रेट प्रेजेंटेशन, इम्प्रेसिव। 20 में से आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। री रिटन कौन है ये? ख्वाजा वलीद।
Terrorism and warfare are major global issues that Pakistan still faces. पाकिस्तान में कौन सा वारफेयर है यार, मतलब गलत बयानी मत करे ना। पाकिस्तान में कौन सा जंग है, 2-3 जंगें हो गई बस करे, अब तो ख़त्म हो गया। 71 के बाद तो कोई जंग नहीं है। अफ़गानिस्तान का जंग अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो है वो टेररिज्म है, वारफेयर नहीं है। हमने खामखा जो है ना उसका टेररिज्म के साथ दुम लगाया वारफेयर का। दुनिया में है वारफेयर लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। गलत बयानी मत क्या करें, जो रियलिटी है उसी को दिया करें। ओके फरखंदा ज़ेब, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। आपका कॉपी पेस्ट नहीं है, अच्छी बात है। चाइल्ड अब्यूज़ इन पाकिस्तान। चाइल्ड अब्यूज़ इज ब्रॉडली डिफाइंड इन मैनी स्टेट्स एज एनी टाइप ऑफ क्रूअल्टी। मैनी स्टेट्स का क्या मतलब है? ये आपने भी कॉपी पेस्ट मारे, उधर यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट्स की बात हो रही है क्या है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में हर स्टेट के अपने डिफिनीशंस होते हैं। अब मेरा शक उधर गया, इसको ज़रा एक्सप्लेन करो, क्या है स्टेट्स का क्या मतलब है आपका? या इस लगाने की कोई ज़रूरत थी? इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात करो कम्पैक्ट सॉलिड किस्म की चीज़। चाइल्ड अब्यूज इज ब्रॉडली ओके, including mental abuse, physical harm, neglect and sexual or exploitation. और एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से आ गया? क्या सेक्सुअल अब्यूज़ में अब्यूज़ भी है, एक्सप्लॉयटेशन भी है? ये एक्सप्लॉयटेशन आपने क्यों लगाया, इसके ज़रा मुझे एक्सप्लेनेशन दे दो। चाइल्ड माल ट्रीटमेंट इज़ अ डिवास्टेटिंग सोशल प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। देयर इज़ नो डाउट दैट। प्लीज़ पहले जो है ना सिनेरियो क्रिएट करो, इंट्रोड्यूस करो, फिर जो है फतवे लगाओ कि बड़ा। इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो प्लीज़ लेट मी नो। इंटरनेट का कोई इशू है? इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल जरताशा खान, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम रीडिंग योर कॉमेंट। There is no doubt that a huge amount of children are harassed, beaten. किधर है? कोई डेटा शेटा दे दो, जज्बाती बातें मत करो। As many as 1489 children। अब ये जो डेटा है ना ये पहले दिया करो। ये जो आपने डेटा दिया है, as many as 1489 children, at least 8 per day were sexually abused in the first half of 2020 in the country। ये ज़बरदस्त डेटा है, एक्सलेंट। लेकिन इसको स्टार्ट में दे दो, सिनेरियो क्रिएट करो। जब ये डेटा देते हो तो एग्जामिनर कन्विंस होता है कि हाँ हालात वाकई बहुत ख़राब है। सिर्फ आपके कहने से कि हालात ख़राब है कोई कन्विंस नहीं होगा। The consequences of maltreatment can be devastating for over 30 years in Glenis. Not bad. Great. Out of 2014 marks. Constitutional crisis in initial days. Though Pakistan became a sovereign country 47, it became a republic in 56. ये कौन साहब है? Hassan Jamil. Okay. It became a republic. Ironically, Pakistan was achieved under Pakistan was achieved. ये कौन सी अंग्रेजी है? Under the constitution struggle. Was achieved नहीं होता ना, मतलब ये बेतुका बेसुरे किस्म की चीज़ है। पाकिस्तान came into being होता है बस। Pakistan was established. Was achieved, not appropriate. Grammatically correct, not appropriate. The first Constituent Assembly was constituted rightly after the। अब constituent आपने लिखा तो constituted मत लिखो ना, कोई और लफ्ज़ लिखो। established, promulgated, announced। ये बहुत बड़ी गलती होती है, वही लफ्ज़ को दोबारा लिखना।
But contrary to the expectations, the Constitutional Assembly was marred with a lot of domestic challenges the country was facing at that time. The Constitutional Assembly was marred with a lot of domestic challenges. ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा. The challenges, the Constitutional Assembly went, बाकी ठीक है, बड़ा लंबा है. मतलब आपकी राइटिंग में जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ जाए, रिपीटिशन ख़त्म करे तो बाकी ज़बरदस्त है. 20 में आपको 15 मार्क्स मिलने चाहिए. अब मैनी स्टेट्स का जो है ना वो नहीं है, मैनी फॉर्म्स पर होता है. जरताशा खान, मैनी फॉर्म्स नॉट स्टेट्स. Warfare, I mean the ones in which Pakistan is participated. ये कौन सा अंग्रेजी है? पाकिस्तान participated और participating, तो पाकिस्तान का इशू नहीं है ना. वो तो मतलब एज सच पाकिस्तान का इशू नहीं. मिक्स कर रहे हैं टेररिज्म और इसको, वारफेयर को मिक्स मत करें. अमजद साहिल खान, फ़लस्तीन इशू. फ़लस्तीन इज़ अ मिडल ईस्टर्न कंट्री. शाबाश, आपने इसको कंट्री भी बना दिया. दैट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद जॉर्डन, इजिप्ट. जॉर्डन का स्पेलिंग देखो अमजद, ये जॉर्डन का ई एन है कि ए एन है. इजिप्ट, सीरिया एंड लेबनान. द लैंड ऑफ फ़लस्तीन इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल. ये अनफैक्चुअल है ना, कंट्री नहीं है फ़लस्तीन. फ़लस्तीन एक रीजन है जिसमें इज़राइल भी शामिल है. हिस्टोरिकली फ़लस्तीन जो है वो एक स्टेट है, डी ज्योर नॉट डी फैक्टो. ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको फ़लस्तीन के लेक्चर में. कंट्री नहीं है. अनफॉर्चुनेटली द कॉन्फ्लिक्ट रिमेन अनसॉल्व्ड. ये अनफॉर्चुनेटली, मनचुनेटली, लकीली, ये इस तरह की चीज़ें एकेडमिक राइटिंग में नहीं होती. ये पाकिस्तानी जो है ना वो एहसास से कमतरी के शिकार लोग हैं. अनफॉर्चुनेटली मत लिखा करें, अवॉइड इट. कुछ अल्फाज बिल्कुल अवॉइड करें. अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, गुड, वेरी गुड, नाइस, इस तरह की चीज़ें मत लिखा करें. थिंग, TING, द थिंग इज दिस. बट it's a time to bring this conflict to an end. The UNO and other world powers must. अब ये देखो ना, लैंग्वेज में बहुत डिटेल में जाना पड़ता है. The UNO and other world powers, इसका मतलब क्या हो गया कि UNO भी वर्ल्ड पावर है. मतलब इस तरह के अनफैक्चुअल लैंग्वेज आप नहीं ले सकते. The UNO and powers of the world से आपका पता चले कि आप यूएनओ को अलहदे समझ रहे हैं, पावर्स को अलहदे समझ रहे हैं. मस्ट प्ले देयर पॉजिटिव रोल ओवर दिस मैटर. मैटर का क्या स्पेलिंग है? देयर शुड बी अ कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 स्टेट्स फार्मूला एंड बोथ इजराइल एंड पैलेस्टीनियन शुड बी ऑन टॉकिंग. अब अपनी बात को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं. पहले आपने लिखा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीबॉडी सो प्लीज़ गो अहेड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप द वर्कशॉप. आई सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. हाँ, आपके जो है क्वेश्चन है तो करें. एनी रिमार्क, एनी क्वेश्चन. तो पहले आपने इसको कंट्री कहा, फिर आप अभी कह रहे 2 स्टेट्स फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाए. सो नो पैराडॉक्स, नो पैराडॉक्स. ओके ख्वाजा वलीद, बी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, सॉलिड writing. Introduce, explain, recommend, conclude. To the point. Otherwise, everything is all right. This is journey, Don't stop the journey. In the journey, you face a lot of problems, a lot of criticism, a lot of negativity. This is part of the journey. Journey जो है आसान नहीं होता, मंजिल आसान होता है. ठीक है ना. आप बाहर जा रहे हैं तो जहाज़ बड़ा कंफर्टेबल होता है, लेकिन बंदा थक जाता है. जब अपने घर पहुंच जाता है तो फिर सही होता है. तो रास्ते में हमेशा मसाइल होंगे, हमेशा. मसाइल से मत डरे.
Globalization means interconnectedness of countries. It is product of liberalism. This concept emerged after World War II. Okay, correct. All the best. Take care. We have finished our SAFE 5 monthly course, which was mainly verb. Next month our focus will be on adverb and other parts of speech. However, we will be doing such activities, general activities. We have also finished our current affairs course for the month of May. Next month I have already announced my course topics. Please focus on global issues. Before end of the month, global issues must be under your full command. All the best. Take care.